Good morning. My name is Dr. R.K. Agarwal. I am your maths teacher. Today we will see Maths Chapter 2, Relations and Functions, Introduction. Here we will see the last classes what you have seen Cartesian product given two non-empty sets P and Q. The Cartesian product P and Q is set of all ordered pair of element from P and Q, that is P and Q is equal to PQ dash P belongs to capital P and Q belongs to capital Q. So this way Cartesian product is being found, it is denoted as P cross Q. This we will see the examples at the end of description. Second is relation. A relation R from non-empty set A to non-empty set B is subset of Cartesian product. So Cartesian product का subset होता है relation derived by describing a relationship between first element and second element of ordered pair A cross B. The second element is called image of first element. So relation के लिए जो फार्मूला होता है वो दोनों नॉन एम्प्टी सेट ए और बी का सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो मिलता है उसको डिस्क्राइब करने से रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट and second element of ordered pair A cross B. The second element is called image of first element. This example we will see next. Domain. The set of all first element of ordered pair in relation R from a set A to set B is called domain of relation R. So domain जो होता है the second element, the set of all first element of ordered pair in relation R from a set A to B is called domain of relation R. And range, the set of all second elements in relation R from set A to set B is called range of relation R. मीन्स जो दूसरे एलिमेंट होते हैं वो रेंज कहलाता है. कोडोमेन. द होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर. नोट दैट रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन. रेंज जो होता है वो सबसेट होता है कोडोमेन का. अभी जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में हमें जानना है, फंक्शंस. द रिलेशन ऑफ एफ फ्रॉम ए सेट ए to set B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B. मीन्स set A और set B के हम जब मैपिंग करेंगे तो हमें पता चलेगा set A के एलिमेंट्स का एक ही इमेज होगा. दो इमेज होने से वो फंक्शन नहीं कहलाएगा. इन अदर वर्ड्स ए फंक्शन ऑफ F is a relation from a non-empty set A to non-empty set B such that domain of F is A and no two distinct ordered pair in F have the same first element. It is similar to this explanation. Now this is what I have told you. Now we will see the example of relation and functions. Thank you. Now we see some more examples. Here, examine each of the following relation given below and state in each case giving reasons whether it is function or not. हमें तीन केस दिए हुए हैं. ये आपके बुक का ही एग्जाम्पल है और इसमें बोला गया है कि हमें ये बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं और रीजन भी देना है फंक्शन है तो क्यों और नहीं है तो क्यों. तो रिलेशन 1 इज 2 1 3 1 एंड 4 2. हम इसमें एरो डायग्राम देखें 2 3 and 4 और दूसरा है 1 1 2. 1 को दो बार नहीं लिखेंगे 2. अभी देखो 2 1 का फंक्शन हुआ एरो डायग्राम में. देन 3 1 का फंक्शन हुआ. देन 4 2 का फंक्शन हुआ. तो each element has got only one function and then this is a function.
Now second is relation R2 by 2, 2 and 2. Then second is 2, 4, third is 3, 3 and fourth is 4, 4. अभी इसको एरो डायग्राम में लिखें. 2 को दोबारा नहीं लिखेंगे. 3 and 4. और इसको दूसरे एलिमेंट को लिखें. 2, 4, 3 and 4 को दोबारा नहीं लिखेंगे. अभी इसका एरो डायग्राम बनाया तो 2, 2, यस. देन 2, 4, 2, 4, यस. देन 3, 3. देन 4, 4, 4. 2, 4, 4, 4. तो इस प्रकार देखें 2 के दो इमेज हैं और इसलिए यह फंक्शन नहीं होगा. सो दिस इज नॉट ए फंक्शन. 1 एंड ओनली 1 इमेज होना चाहिए. 1 एंड 1 एलिमेंट के साथ इसका एरो डायग्राम में आना चाहिए. तीसरा है R is 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7. इसका यदि हम एरो डायग्राम बनाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Then 2, 3, 4, 5, 6, 7. इसको 1 के साथ 2 है. देन 2 के साथ 3 है. देन 3 के साथ 4 है. 4 के साथ 5 है. 5 के साथ 6 है. एंड 6 के साथ 7 है. तो सारे एलिमेंट ऑक्युपाइड हैं और सारे एलिमेंट का एक एक इमेज है. इससे पता चलता है कि ये रिलेशन फंक्शन है. सो दिस वे हमने वी हैव प्रूव्ड दैट फंक्शन शुड हैव ओनली 1 इमेज एंड इट शुड नॉट हैव 2 इमेजेस. अदरवाइज दिस इज नॉट ए फंक्शन. डेफिनेशन में भी ऐसे ही दिखाया हुआ है कि फंक्शन इज कॉल्ड टू बी टू हैव सिंगल इमेज. अभी आप देखें तो इसमें फंक्शन में बताता है a special type of relation is called function. We can visualize function as a rule which produces new element out of some given element. There are many terms such as map or mapping. Mapping बताया. Definition है a relation f from set A to set B is said to be a function if every element of A has one and only one image in set B. अभी A का जितना भी सेट है B में एक ही इमेज होना चाहिए. ये इसका रिलेशन है. So this way we have completed exercise A, and then B is n the set of natural number, and our relation is defined n such that r is equal to xy and y is equal to 2x and x y belongs to natural number. What is domain, codomain and range of r? Is this relation a function? अभी इसका डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर निकालना है एंड इसमें यह बताना है क्या ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है. तो एक इससे क्लियर है डोमेन ऑफ आर इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन, क्योंकि यहां दिया हुआ है एन बी सेट ऑफ नेचुरल नंबर. तो जब ये सेट नेचुरल नंबर है तो पहला वाला नेचुरल नंबर होगा आर का, और इस प्रकार ये डोमेन भी नेचुरल नंबर होगा. जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एंड सो ऑन. ये r इज इक्वल टू, और दूसरा क्या है y, एंड y हैज 2x. 2x यानी जो y का वैल्यू होगा 1 का 2 होगा,
1 2 2 4 3 6 4 8 एंड सो ऑन। ये नेचुरल नंबर है, आगे तक चलेगा। तो आप देखें तो डोमेन क्या है, फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। सो डोमेन ऑफ आर सेट इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होगा। कोडोमेन इज आल्सो नेचुरल नंबर। कोडोमेन क्या होता है, इसमें देखा है आर में जो रिलेशन निकालना है, सेट ए और सेट बी भी नेचुरल नंबर है, तो कोडोमेन विल बी आल्सो नेचुरल नंबर। रेंज इज सेट ऑफ इवन नंबर। रेंज जो है वो इवन नंबर का सेट है, नंबर दो जो एलिमेंट है वो सेट होता है। तो ये इवन नंबर 2 4 6 8 अप टू इंफिनिटी हो जाएगा। तो रेंज इज सेट ऑफ इवन नंबर। सिंस एवरी नेचुरल नंबर हैज वन एलिमेंट, one image, so it is a function. अब इसमें देखिए 1 का 2 इमेज है, 2 का 4 है, 3 का 6 है। Likewise, there is no repetition of images, so we call a natural number has one image, so it is a function. This way we complete the examples and we go for exercise. Thank you. Now we will see relation for example for relation. So one example is given in the book. Define a relation R from A to A by relation is shown x y where y is equal to x plus 1. Given that a is equal to 1 2 3 4 5 6, तो हमें a to a माने दोनों सेट जो है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 है। अभी इसका हमको रिलेशन निकालना है। टिपिक रिलेशन यूजिंग एरो डायग्राम एंड राइट डाउन डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर। अभी हम पहले रिलेशन निकालें। रिलेशन निकालने के लिए क्या है, x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 है एंड y की वैल्यू यदि y प्लस 1 x प्लस 1 ले तो x प्लस 1 2, x प्लस 2 सेकेंड एलिमेंट 3 4 5 एंड 6 है। अभी हम इसे लिखे 1 2 then 2 3 then 3 4 3 4 then 4 5 then 5 6। इस प्रकार हमारा रिलेशन बन गया 1 2 3 4 5 6। क्योंकि 6 के बाद आगे एलिमेंट नहीं है, हमें 5 तक लेना पड़ा। अभी इसमें लिखता है डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एरो डायग्राम। एरो डायग्राम में बनाना है तो हम 1 को देखें, 1 का किससे है, 2 से है एंड देन 2 3 है, देन 3 4 देन 4 5 देन 5 6 और इसके बाद 6 का कुछ नहीं है। तो ये एरो डायग्राम हो गया 1 2 3 4 5 एंड 2 3 5 4 5 6। अभी बोलते हैं राइट डाउन एरो डायग्राम। दिस इज वन थिंग एंड सेकेंड इज डोमेन। डोमेन क्या होगा, डोमेन इज फर्स्ट एलिमेंट। सो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड कोडोमेन। कोडोमेन क्या होगा, सेकेंड सेट ए और ए दोनों एक ही सेट है तो कोडोमेन सीधा 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 एंड 6। अभी रेंज सेकेंड एलिमेंट होता है 2 3 4 5 6। 2 3 4 5 6
ये आपने देखा डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज एंड रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। एरो डायग्राम भी बनाना सीखा है। इस प्रकार आप देखेंगे ये बहुत सिंपल है, आपको कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। थैंक यू। नेक्स्ट वी विल सी फंक्शंस एग्जांपल। थैंक यू। नाउ वी विल सी एक्सरसाइज 2.3 question 1 to 5. The question 1 says which of the following relations or function determine its domain and range. यदि ये फंक्शन रिलेशन फंक्शन है इसको डोमेन और रेंज बताएं तो ये देखिए 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1 देखने से पता चलता है फंक्शन है। अभी हम इसको डायग्राम बना के देखें, एरो डायग्राम। तो ये 2 5 8 1 8 1 11 14 17 11 14 and 17। अभी दूसरे का देखें तो 1 1 1 1 1 सब में 1 है तो एक ही बार आएगा। अब आप इसका एरो डायग्राम बनाएंगे तो 2 का 1 के साथ, 5 का 1 के साथ 5 1, 8 का 1 के साथ, और ये 8 के बाद है 11 का 8 के बाद 11 का 1 के साथ, 14 का 1 के साथ एंड 17 का 1 के साथ। इस प्रकार सभी फर्स्ट एलिमेंट का एक ही इमेज है। जब एक ही इमेज होता है तो ये फंक्शन होता है। तो इस प्रकार हम बोलेंगे दिस इज ए फंक्शन। अब फंक्शन है तो इसका डोमेन और रेंज भी होगा। तो डोमेन क्या है? डोमेन फर्स्ट लेटर होता है, एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट 2 5 8 11 14 17। तो डोमेन इज 2 5 8 11 14 and 17। और रेंज क्या होगा? रेंज सेकेंड एलिमेंट होता है 1 1 1 1 1। तो एक ही बार लिखेंगे तो रेंज इज इक्वल टू 1। इस प्रकार डोमेन और रेंज हमने पहले वाले एक्सरसाइज का 1 सॉल्व कर लिया। अभी दूसरा देखते हैं रिलेशन 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 एंड 14 7। सो इसमें हम देखें एरो डायग्राम बनाया तो फिर से देखें 2 4 6 8 10 12 14 2 4 6 8 10 12 and 14। दूसरा एलिमेंट को बनाया तो 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7। अभी 2 का 1 से है 2 1, 4 का 2 से है, 6 का 3 से है, 8 का 4 से इमेज है, 10 का 5 से इमेज है, 12 का 6 से है एंड 14 का 7 से है। इस प्रकार हम देखेंगे सारे फर्स्ट एलिमेंट के सेकेंड एलिमेंट या इमेज एक ही है। तो इसलिए ये फंक्शन है और इस फंक्शन को हम बोलेंगे दिस प्रूव्स द फंक्शन ऑफ दिस। एंड इसका फिर से हमें डिटरमिन डोमेन एंड रेंज। डोमेन क्या होगा? 2 4 6 8 10 12 14। डोमेन इज
2, 4, 6, 8, 10, 12 and 14. एंड रेंज होगा सेकेंड एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. सो डोमेन और रेंज भी निकल गया और अब इसमें फंक्शन है करके ये भी पता कर लिए. अभी थर्ड वाला एक्सरसाइज 1 का थर्ड देखेंगे. एक्सरसाइज 1 में बोलते हैं r इज इक्वल टू 135, 13, 15 एंड 25. तो इसका हम एरो डायग्राम बनाए. वन को 2 बार नहीं लिखेंगे. 2 एंड दूसरे का 3, 5 को 2 बार नहीं लिखेंगे. अभी 1 का है 1, 3 एंड दूसरा 1, 5, तीसरा 2, 5. इस प्रकार हम देखते हैं एक के 2 ट्री इमेज हैं और 2 जहां इमेज हैं ट्री इमेज, तो हम इसे फंक्शन नहीं कहते क्योंकि फंक्शन के डेफिनेशन में one and only one single image should be there. So this is not a function. So we are not going to determine for the domain and range. However, we can say domain is 1, 2 and range is 3, 5. Now this completes question number 1. And question number 2 says find domain and range of following real functions. ये रियल फंक्शन दिए हैं, इसका डोमेन हमें निकालना है. f(x) इज इक्वल टू माइनस मॉडुलस ऑफ x. अभी हम इसको करने के लिए इसकी वैल्यूज रखेंगे. f(x) में x की वैल्यू 1 रखें तो क्या आएगा माइनस 1 का 1, तो दिस विल बी -1. y x की वैल्यू 2 रखें तो ये आएगा -2. x की वैल्यू 3 रखें तो ये आएगा -3. अभी x की वैल्यू 0 रखें तो ये आएगा 0, 0. x की वैल्यू -1 रखें तो ये आएगा -1, बाहर आएगा 1 में जाएगा, ये -1 रहेगा. x की वैल्यू -2 रखें, x की वैल्यू -2 बाहर आएगा, +2 हो जाएगा, -2. x की वैल्यू -3 रखें तो ये -3 ही रहेगा. तो इस प्रकार हम देखते हैं x की वैल्यू y के साथ -1, 2 एंड -3, 0, 1, -1, -2, -3, ये सारे माइनस में जाते हैं y की वैल्यूज और x की वैल्यूज प्लस और माइनस दोनों में है. अभी हम इसे रिलेशन में लिखें तो f(x) इज इक्वल टू -x. ये कैसा होगा अब देखिए. तो डोमेन जो होगा इसमें डोमेन -1, 2, 3, -3 एंड दिस डोमेन इज रियल नंबर. and range is equal to 0, -1, -2, -3 and up to infinity. So we can write infinity 0 to minus infinity. So minus infinity to 0. So this is range, and this way we have completed number 1. Number 2, f(x) is equal to
9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इससे सॉल्व करने की क्वेश्चन में दिया है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फॉलोइंग रियल फंक्शंस। रियल फंक्शंस है तो इसमें एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम रखेंगे, जैसे एक्स की वैल्यू 1 रखते हैं तो एफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8। एक्स की वैल्यू 2 रखें तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 2 जा 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। एक्स की वैल्यू 3 रखें तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू 4 रखें तो 9 माइनस 16 इज इक्वल टू -7 स्क्वायर रूट। बट ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि रियल नंबर है, तो रियल नंबर में ये माइनस नहीं आ सकता। आउटपुट रियल नंबर होना चाहिए, आउटपुट भी रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए। इस प्रकार हम कहेंगे कि ये एस की वैल्यू प्लस माइनस 3 में -3 तक जा सकता है और +3 तक जा सकता है। ये 3 माइनस +3 देखा, अभी -3 में भी देख सकते हैं। -3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस -3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। -2 रखने से स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस -2 स्क्वायर दिस इज 4। 9 माइनस 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। -1 रखने से स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो आप इस सब में देखें एक्स की वैल्यू कैसे होता है। एक्स की वैल्यू 0 की वैल्यू है, -1 में √5, -1 में √5, -2 में √5, -3 में 0, -3 में 0 और +3 में 0 और +2 में √5, +1 में √8। तो इस प्रकार हम देखें ये -3, -2, -1 and 0, 1, 2, 3 f(x) is equal to -3, -2, -1, 0, 1, 2 या 3, यही वैल्यू उनको f(x) की होगा। और इस वैल्यू से यदि हम डोमेन निकालें तो डोमेन क्या होगा, ये x बिलोंग्स टू -3 इक्वल टू x इक्वल टू +3। x इज इक्वल टू सच दैट ये डोमेन हो जाएगा, क्योंकि ये डोमेन -3 से 3 तक के है और इसका रेंज होगा y इज इक्वल टू
अभी y सभी में 0 to 3 तक के आया है, 1 8 एंड y की वैल्यू 1 2 3 3 -3 -2 -1 रखने से y की वैल्यू आई है 3। 0 आई, -5 आई, -8 आई, ये 1 -8, ये x की 0 रखे वैल्यू तो 3 आएगी। तो इस प्रकार x की वैल्यू 0 रखने से 3 आती है, तो ये होगा y इज इक्वल टू 3 0 is equal to y is equal to 3 और स्मॉलर देन 3, क्योंकि 3 से छोटा है, ये यहाँ 3 आता है, और इस प्रकार 0 से 3 आता है, तो इसकी वैल्यू इट इज इक्वल टू 0 और इक्वल टू 3 और लेस देन 3। सो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यदि आपको समझ नहीं आया फिर से बताता हूँ। f(x) is 9 minus x square का 3 वैल्यू आएगा, 0 रखने से, 1 रखने से स्क्वायर रूट 8 आएगा, 2 रखने से स्क्वायर रूट 5 आएगा, 3 रखने से 0 आएगा, और इस प्रकार -3 -2 -1 रखने से भी सेम वैल्यू आएगी। तो ये f(x) होता है -3 -2 -1 0 1 2 3। सो d होगा x इज इक्वल टू -3 इक्वल टू और स्मॉलर देन x is equal to or smaller than +3। लाइकवाइज जो रेंज है, रेंज होगा ये 0 to 3, 0 to 3 को दिखाने के लिए y is equal to 0 to 3। क्वेश्चन 3 को हम सॉल्व करते हैं। ए फंक्शन f is defined by f(x) to x minus 5, राइट डाउन वैल्यूज ऑफ f0। अभी f0 की वैल्यू निकालना है, तो x की वैल्यू 0 रखेंगे, 2 into 0 -5 इज इक्वल टू -5, तो पहले की वैल्यू -5 भी। 7 की वैल्यू रखें, तो 2 into 7 14 - 5 is 9, 14 - 5, एंड थर्ड वैल्यू रखें -3 to the -6, 2 into -6 plus -5 is equal to -11। इस प्रकार हम क्वेश्चन 1 to 3 सक्सेसफुली करते हैं। मुझे कंटिन्यूइंग विथ क्वेश्चन नंबर 4 and 5, सी क्वेश्चन नंबर 4, ए फंक्शन t which measures temperature in degrees Celsius in 2 degree Fahrenheit is defined by Tc is equal to 9c by 5 plus 32। ये सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए ये फार्मूला है। अब इसमें हमें दिया हुआ है T is 0 degree Fahrenheit centigrade, T is 28 and T is -10 and T is 212। इनके वैल्यूज हमें निकालना है, क्या होगा। तो पहला है T 0 में करने से हमने इसमें वैल्यूज रखा 9 into 0 by 5 plus 32, 32 हो गया। उसी प्रकार C28 में 9 into 28 by 5 and 32 412 by 5 82.4 आया। C is equal to -10, 9 into -10 divided by 5 प्लस 32, ये 14 डिग्री सेंटीग्रेड आया। अभी एक मैं करके बताता हूँ। TC is 212, TC is 212 is equal to 9c by 5 प्लस 32। ये हमारा फार्मूला में रखा मैंने। 32 इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 9c by 5 is equal to 212
minus 32 is equal to 180. 9 को 180 से 9 2 जा 20, 20 को 5 से करेंगे तो c इज इक्वल टू 100। इस प्रकार हमने इस फंक्शन से जो दिया है Tc इज इक्वल टू 9c/5 प्लस 32 से टेम्परेचर सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड कन्वर्ट करके देखा। अभी क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इसमें 3 फंक्शन दिए हुए हैं। f(x) इज इक्वल टू 2 minus 3x where x belongs to R and x is greater than 0. Second, f(x) is equal to x square plus 2. x is a real number. And f(x) third is f(x) x is a real number. f(x) is equal to x, x is a real number. अभी इसमें देखें, x is greater than 0. Therefore, 3x is also greater than 0 and minus 3x is smaller than 0 as the sign has changed. So minus 2 minus 3x is also smaller than 2. हमने दोनों साइड 2 ऐड किया। अभी 2 minus 3x is smaller than 2, तो f(x) is 2 minus 3x, तो f(x) is smaller than 2 minus 3x। इस प्रकार ये फंक्शन हमें मिलता है जो 2 minus 3x से f(x) स्मॉलर है। इसका मतलब क्या होता है, and 2 minus 3x is smaller than 2, so this is also smaller than 2. So f(x) is smaller than 2 and therefore f(x) is equal to f(x) क्या बिलोंग करेगा, हम इसमें देखें तो ये छोटा 2 से है, 2 से छोटा यानी 1 0 -1 -2 -3 अप टू इंफिनिटी जाएगा, तो ये इंफिनिटी माइनस एंड ये 2 है, तो 2 से छोटा भी हो गया, स्मॉलर देन 2, 2 इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ 2 से छोटा हो गया और ये f(x) की वैल्यू होगी। और f(x) जो होता है वो हम y वैल्यू के बराबर होता है जो कि सेकंड एलिमेंट है और जो रेंज होता है, तो रेंज इज इक्वल टू minus 11 minus infinity and 2 not inclusive, so open ब्रैकेट है जो आपको मालूम है और माइनस इंफिनिटी तक जाता है जो माइनस इंफिनिटी इंक्लूडेड नहीं है। इस प्रकार हमने इसका रेंज निकाला। दूसरा क्वेश्चन है, f(x) is equal to x square plus 2. And x is a real number. तो अभी जब x की वैल्यू आप 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, कुछ भी रखो, पॉजिटिव ही वैल्यू आएगा। -1 -2 -3 को -1 रखने से स्क्वायर होने से प्लस हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, x स्क्वायर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0, क्योंकि -1 होगा नहीं, -2 होगा नहीं, -3 नहीं होगा, तो x स्क्वायर 0 हो सकता है और 0 होने से 0 के आगे भी हो सकता है। तो x स्क्वायर प्लस 2 is equal to or greater than 0 plus 2, ये हमारे को 2 दोनों साइड में ऐड करने से होता है। तो
एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो एफ एक्स इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन 2। अभी इक्वल टू आर ग्रेटर देन 2 में क्या होगा, 2, 3, 4, 5 नंबर लाइन में देखेंगे आप तो 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। तो ये नंबर लाइन में देखेंगे ग्रेटर देन 2, 2 से आगे जितना भी बड़ा है वो सब है एफ एक्स में। तो इससे क्या होता है कि ये 2 तो इंक्लूसिव है, 2 का इक्वल है तो, और ये नंबर लाइन में इंफिनिटी तक है, तो ये हमने इसका रेंज का वैल्यू निकाला 2 इंफिनिटी प्लस। थर्ड है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज रियल नंबर। तो यदि 1 वैल्यू रखें तो 1 होगा, 2 वैल्यू रखें 2 होगा। तो सारे डोमेन क्या होगा, एक्स में डोमेन विल बी रियल नंबर्स। देन रेंज क्या होगा, एफ एक्स इज एक्स तो डोमेन के बराबर ही होगा, रेंज भी रियल नंबर होगा। इस प्रकार हम रेंज भी निकाल लिए, एफ एक्स इज ए रियल नंबर, देयरफॉर range will be also real number. So this completes question number 5 and thus we complete exercise number 2.3. I think these are the simple questions which you will be able to solve and I don't find any problem in solving these problems. Thank you so much. Thank you.